चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, पैसेज है आपके सामने और कितने स्लाइड का पैसेज है ये देखते हैं। चलिए मज़ेदार पैसेज है, बड़ा पैसेज है, 3 स्लाइड है। चलिए इसको हम करते हैं, जब तक मैं जल ग्रहण करता हूँ आप थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग करें, इसको रीडिंग है ना, रीडिंग करना शुरू करें। ओके चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे साथ ही आप लोग पढ़े है ना, बड़ा है और हम लोग जो है इसको बड़ा ध्यान से पढ़ने वाले हैं। पूरा एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। और जिस तरीके से हम लोग पैसेज करते हैं, हम लोग ना हर स्लाइड को जो है 2-2 बार रीड करेंगे, एक बार थोड़ा स्लो, एक बार फास्ट। आप मेरे साथ पढ़ें, आप समझने की कोशिश करें, फिर इसको समझेंगे तीसरी बार। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। A new paper published by Roshman and her colleagues in February in the journal Ecology shift through एक मिनट क्या है, हाँ, shift through past research on marine debris to assess the true extent of the environmental threat. Plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris. Roshman and her colleagues set out to determine how many of those perceived risks are real. Often, Roshman says scientists will wrap up a paper by speculating about a broader impact of what they have found. Maybe their study has shown that certain seabirds eat plastic bags, for example, and the paper goes on to warn that whole bird population are at risk of dying out. But the truth was that nobody had yet tasted those perceived threats. Roshman says there wasn't a lot of information. Roshman and her colleagues examined more than 100 papers on the impact of marine debris that were published through 2013. चलिए अब इसको एक बार थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं। A new paper published by Roshman and her colleagues in February in the journal Ecology shift through past research on marine debris to assess the true extent of the environmental threat. Plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris. Roshman and her colleagues set out to determine how many of those perceived risks are real. Often, Roshman says scientists will wrap up a paper by speculating about the broader impacts of what they have found. Maybe their study has shown that certain seabirds eat plastic bags, for example, and the paper goes on warn that whole bird population are at risk of dying out. But the truth was that nobody had yet tasted those perceived threats. Roshman says there wasn't a lot of information. Roshman and her colleagues examined more than 100 papers on the impacts of marine debris that were published through 2013. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे 2 बार, एक बार स्लो। Within each paper, they asked what threats scientists had studied 366 perceived threats in all and what they had actually found. In 83% of cases, the perceived dangers of ocean trace were proven true.
In most of the remaining cases, the working group found the studies too shoddy to draw conclusions from. They lacked a control group, for example, or used faulty statics. Strikingly, Roshman says only one well-designed study failed to find the effect it was looking for. An investigation of mussels ingesting microscopic plastic bits. The plastic moved from the mussel's stomach to their bloodstream. Scientists found and stayed there for weeks but didn't seem to stress out the shellfish. A lot of ocean debris is microplastic or pieces smaller than 5 millimeters. These may be these may be beads of a facial scrub, fiber shed by synthetic clothing in a wash, or eroded remnants of larger debris. Compared to the number of studies investigating large-scale debris, Roshman's group found little research on the effects of these tiny bits. There are also, she adds, a lot of open questions about the ways that ocean debris can lead to sea creature death. अब एक बार इसको फास्ट पढ़ते हैं. Within each paper, they asked what thread scientists had studied 366 perceived thread in all and what they had actually found. In 83% of cases, they perceived dangers of ocean trash were proven true. In most of the remaining cases, the working group found the studies too shoddy to draw conclusion from. They lacked the control group, for example, or use faulty statistics. Strikingly, Roshman says only one well-designed study failed to find the effect it was looking for. An investigation of mussels ingesting microscopic plastic bits. The plastic moved from the mussel's stomach to their bloodstream. Scientists found and stayed there for weeks, but didn't seem to stress out the shellfish. A lot of ocean debris is microplastic or pieces smaller than 5 millimeter. Now these may be beads from a facial scrub, fiber shed by synthetic clothing in a wash, or eroded remnants of larger debris. Compared to the number of studies investigating large-scale debris, Roshman's group found little research on the effect of these tiny bits. There are also, she adds, a lot of open questions about the way that ocean debris can lead to sea creature death. ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, स्लो पढ़ेंगे थोड़ा. Many studies have looked at how plastic affects an individual animal or that animal's tissues or cells rather than whole populations. And in the lab, scientists often use higher concentration of plastic than what's really in the ocean. None of that tells us how many birds or fish or sea turtles could die from plastic pollution or how deaths in one species could affect that animal's predators or the rest of the ecosystem. We need to be asking more ecologically relevant questions, Roshman says. Usually, scientists don't know how disasters like oil spill or nuclear meltdowns will affect the environment until after they have happened. She says, we don't ask the right questions early enough, but if ecologists can understand how the slow moving disaster of ocean garbage is affecting ecosystems, they might be able to prevent things from getting worse. चलिए इसको थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं आप.
Many studies have looked at how plastic affects an individual animal or that animal tissues or cells rather than whole population. In the lab, scientists often use higher concentrations of plastic than what's really in the ocean. None of that tells us how many birds or fish or sea turtles could die from plastic population or how deaths in one species could affect that animal's predators or the rest of the ecosystem. We need to be asking more ecologically relevant questions, Roshman says. Usually, scientists don't know how disasters like oil spills or nuclear meltdown will affect the environment until after they have happened, she says. She says, we don't ask the right questions early enough. But if ecologists can understand how the slow-moving disaster of ocean garbage is affecting ecosystem, they might be able to prevent things from getting worse. ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जो है 2 बार इसकी रीडिंग किया पूरा पैसेज का। इससे एक आइडिया लगा कि ये जो मरीन जो पोल्यूशन जो होता है, ठीक है, किसके अंदर पोल्यूशन होता है, ओशन के अंदर जो पोल्यूशन होता है, खास करके जो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन होता है, किस तरह से जो केमिकल्स वगैरह या कॉस्मेटिक की जो चीज़ें या कुछ भी छोटे छोटे प्लास्टिक के जो कण होते हैं जो नदी के रास्ते जो है, हमारे यहाँ से घरों से सीवेज, सीवेज से नदियाँ, नदियों से समुद्र और समुद्र के रास्ते जाता है और वो जाकर जो है किस प्रकार से समुद्री जीवों को जो है उससे नुकसान होता है, उसके बारे में पूरा ये पैसेज है। और न केवल नुकसान लेकिन एक इसके अंदर थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव रखा गया। ये जो साइंटिस्ट हैं रॉशमैन, इनके द्वारा कि जिस प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशंस या खोजें, रिसर्च वगैरह होती रहती है मरीन में, वो काफ़ी नहीं है। उसमें जो दर्शाया जाता है वो सही असली पिक्चर नहीं है। मतलब असलियत में अगर देखा जाए तो परिस्थिति जो है और भयानक है ना। बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, जैसे जो बड़े बड़े जो कण होते हैं प्लास्टिक के, उसको तो बता देते हैं और उससे एक अंदाज़ा लगा देते हैं कि इतना नुकसान है। सपोज एक बर्ड के पेट में अगर ऐसी कुछ पाया जाता है प्लास्टिक, तो बताया जाता है कि पूरे ही बर्ड्स जो है इससे अफेक्टेड हैं। लेकिन सही दिशा में जो है खोजे इतनी डीप लेवल पर नहीं हो पाती है। उसके अलावा जो बारीक छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कण हैं वो किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, ना केवल उन मरीन एनिमल्स को, फिशेस को, लेकिन उनको खाने वाले को भी, है ना, जिसमें फिश जो है ह्यूमंस भी, इंसान भी उसको कंज्यूम करते हैं। तो उसमें ये रिसर्च में ये बातें भी सामने नहीं आ पाती कि इंसानों को कैसे अफेक्ट हो रहा है या जो दूसरे प्रेडेटर जो इनको खाते हैं, इन पर फीड करते हैं, उनको कैसे असर कर रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा रीडिंग करने से हमको एक आइडिया लगा कि ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमको एक आसानी हुई। अब हम जब इसको समझेंगे तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक स्टोरी है ना, एक पर्सपेक्टिव है, हमको पता है कि ये इसका जो कैरेक्टराइजेशन है, इसका क्या बैकग्राउंड है पैसेज का, वो हमको सब इसका आइडिया लग गया। चलिए, तो अब जो है हम लोग इसको पूरा समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, इसमें क्या बात हो रही है। न्यू पेपर पब्लिश बाय, एक नया रिसर्च का पेपर जो है पब्लिश किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? रॉशमैन, है ना, एक लेडी साइंटिस्ट आप बोल सकते हो इनको। ठीक है, मरीन जो इनके द्वारा एक नया पेपर पब्लिश किया गया, इनके द्वारा और इनके कलीग्स के द्वारा, इनके जो साथियों के द्वारा। और कब ये पब्लिश किया गया था? फरवरी में। ठीक है, और कहाँ पर पब्लिश किया गया था? कौन सी मैगजीन में? तो इस जर्नल में किया था जिसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है, इस जर्नल के अंदर जो है इनका पेपर पब्लिश किया गया, है ना। और ये क्या कहा जाता है? शिफ्ट थ्रू। अच्छा, ये जो वर्ड है इसमें कुछ ना कुछ एरर है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इसका करेक्ट वाला वर्ड बताता हूँ। इकोलॉजी, अच्छा, शिफ्ट थ्रू, हाँ ये वही है, शिफ्ट है, SHIFT, हाँ शिफ्ट, SH आ जाएगा, बस इतना सब है ना। शिफ्ट थ्रू पास्ट रिसर्च, मतलब ये एक तरह से
पास्ट की जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़र इसमें डाली गई है इसके पेपर के थ्रू, है ना। जितनी पुरानी जो रिसर्च हुई है उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है इस पेपर में कि क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं, है ना। थ्रू पास्ट रिसर्च जो थी, जितनी भी पुरानी जो रिसर्च हुई होगी समुद्र के प्लास्टिक पोल्यूशन के विषय में, उन रिसर्च का जो निचोड़ इन्होंने निकाल के अपने पेपर में बताया। तो पास्ट रिसर्च के बारे में इन्होंने लिखा मरीन डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है जो कुछ मरीन के अंदर जो पड़े हुए गार्बेज, ठीक है, एक तरह से कचरा। डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, है ना। ऐसा कचरा जो कहाँ पे, समुद्र में पाया जाता है। और जाहिर सी बात है समुद्र तो उत्पन्न नहीं करता है कचरा, कचरा कहाँ से आता है ना। वो इंसानी जो एक्टिविटीज़ है उससे बनता है और वो फिर समुद्र में जाता है। तो वो जितना कचरा, कूड़ा कचरा, जो भी गंदगी जो चीज़ें पड़ी हुई है उसके बारे में जो है पूरा इन्होंने रिसर्च किया, है ना, टू असेस द ट्रू। और इसका मेन पर्पस क्या है ये नया पेपर लाने का, कि ट्रू एक्सटेंट ऑफ इन्वायरमेंटल थ्रेट। कि इनका जो मेन पर्पस था रॉशमैन का, इनका ये था कि ये असलियत में ये जो समस्या है, ये जो कचरे की समस्या है इसके अंदर जो मरीन में, वो कितनी ज़्यादा गहरी है ना। जितने भी पेपर उससे उन्होंने एक तरह से पूरा एक कंक्लूजन किया और ये बताने की कोशिश की कि ये जो वातावरण, जो समुद्री वातावरण को जो नुकसान है वो कितना ज़्यादा है ना। वो उसकी एक्सटेंट बताने की इन्होंने कोशिश की। अब देखो, plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris। इससे पहले भी बहुत सारी जो ऐसी स्टडीज या रिसर्च आई, उन्होंने सब में जो है अलार्म बेल्स बजाई। इसका मतलब उन्होंने सब ने अलार्म किया। इससे पहले जो रिसर्च आया उन्होंने भी जो है जागरूक किया, अलार्म किया, है ना। इस चीज़ पे जो है राज्यों का या सरकारों का ध्यान केंद्रित किया कि ये जो मरीन डेब्रिस है, कचरा है, इनकी जो मौजूदा जो प्रेजेंस है वो कितनी ज़्यादा भयानक है ना, कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है, उसको बताने की कोशिश की पुराने रिसर्च पेपर ने। रॉशमैन और उसके जो कलीग्स हैं सेट आउट टू डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ दोज परसीव्ड रिस्क आर रियल। और रॉशमैन और इन्होंने आगे जो है इस पर एक रोशनी डालने की कोशिश की कि दोज परसीव्ड रिस्क जो है, ये जो रिस्क है, जितनी रिस्क बताई गई, ये जो पुराने रिसर्च के पेपर में जो रिस्क, जो खतरे बताए गए, ठीक है, इस कूड़े कचरे के मरीन के अंदर जो है समुद्र में, वो रिस्क जो है कितनी हद तक सच है या कितने हद तक उसमें क्या सच्चाई है या नहीं है ना, उसको बताने की इन्होंने, रॉशमैन ने कोशिश की। रॉशमैन, ठीक है, ये हो गया। ऑफन रॉशमैन से, कई बार रॉशमैन का ये क्या कहती है कि साइंटिस्ट विल रैप अप द पेपर बाय स्पेक्यूलेटिंग अबाउट द ब्रॉडर इम्पैक्ट। कि इनका क्या मानना है एक्सक्यूज मी, रॉशमैन का ये मानना है कि कई बार क्या होता है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं जो इस प्रकार के रिसर्च पेपर लाते हैं या समुद्र की स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं पता है, पूरे पेपर को एक तरह से, इस तरह से रैप अप करने का मतलब होता है इस तरह से लिख डालते हैं, एक स्पेक्यूलेशन करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, है ना। सही इंफॉर्मेशन कई बार खोज नहीं करते हैं और एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ब्रॉडर इम्पैक्ट का, वो ये मान के चलते हैं कि इसका ओवरऑल बड़े स्तर पर इसका क्या असर होने वाला है, ऑफ व्हाट दे हैव फाउंड। मतलब जो भी एक छोटा मोटा वो रिसर्च में प्राप्त करते हैं, पता करते हैं, उसका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट बना के वो फटाफट अपना पेपर जो है पब्लिश करवा देते हैं। और उनको लगता है, पढ़ने वाले को लगता है कि ये पूरी राइट, सही इंफॉर्मेशन है ना। ऐसा लेकिन सही नहीं होता है रॉशमैन के हिसाब से, ये उनका कहना है। मे बी देयर स्टडी हैज शोन दैट सर्टन, देखो अब उन्होंने एक उदाहरण से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मान लो कि उनकी एक कुछ स्टडी इन्होंने करी, है ना, कुछ खोज की, उसमें ये बताया कि कुछ जो समुद्री जो पक्षी है ना, उन्होंने प्लास्टिक के बैग खाए। मान लो कुछ पक्षियों ने क्या करा, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें खाई या बैग खाए, और एक एग्जाम्पल के हिसाब से, और ये एक पेपर जो पब्लिश होता है वो पता है क्या बताता है, वो बताता है, एक वार्निंग देता है कि पूरे की पूरी ये जो बर्ड पॉपुलेशन है उसको खतरा है, वो मरने वाली है। मतलब एक या दो पक्षियों के अंदर प्लास्टिक का कुछ कण मिला या प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह मिली, और फिर जो पेपर पब्लिश होता है उसमें ये बताते हैं कि ये सारी की सारी जो पक्षी, इस पक्षी की जो प्रजाति है वो खतरे में है, उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। जबकि सच्चाई तो ये नहीं है भाई, सारे पक्षी की प्रजाति कैसे खतरे में होगी, वही पक्षी जो समुद्र में
खाना खाया आते होंगे शिकार के लिए, ठीक है, छोटी मोटी मछलियाँ खाने के लिए उनका, और उनमें से कुछ ही मछलियों के अंदर वो प्लास्टिक पाया गया। तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि आप सारी पक्षी की उस प्रजाति को खतरे में बता दो, एंडेंजर्ड बता दो। तो इस तरह का जो है कई बार एक अंदाजा लगा के जो है अपने पेपर में रिसर्चर्स लिख देते हैं बड़ा चढ़ाकर। तो ये रॉसमैन का मानना है, ठीक है। आगे देखते हैं, बट द ट्रूथ वॉज दैट, है ना, अब सच्चाई देखो वो बता रहे हैं आगे कि सच्चाई जो है वो किसी ने भी, नोबडी हैड टेस्टेड दोस परसीव्ड थ्रेट, मतलब लोग जो है खतरे का अंदेशा तो जाहिर कर देते हैं अपने पेपर के थ्रू, लेकिन उसकी वो रिसर्च नहीं करते, उसको वो सच प्रूफ नहीं करते, टेस्ट नहीं करते हैं उसको, टेस्ट नहीं करते हैं उसको कि ये जो इन्होंने बताया कि पूरी प्रजाति अगर खतरे में, तो बताओ जरा किस तरीके से खतरे में है ना, ये रॉसमैन का मानना है। तो आगे क्या, देयर वॉज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं उसके बारे में। अगर वो बोलेंगे पूरे एक बर्ड की प्रजाति खतरे में, तो उसके बारे में प्रूफ ही नहीं है। रॉसमैन एंड हर कलीग जो है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो रिसर्च किया, इन्होंने क्या करा पता है, इन्होंने मोर देन 100 पेपर्स ऑन द इम्पैक्ट, ऐसे 100 से ज़्यादा कुछ पेपर, रिसर्च के जो पेपर हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपनी रिसर्च खोज की थी, जो पब्लिश करे, उन सब पेपर्स को इन्होंने क्या करा, डिटेल में स्टडी करा, है ना। मरीन डेब्रिस के ऊपर जो रिसर्च पेपर जितने भी निकले, उनको जो है रॉसमैन ने और इनके साथियों ने जो है स्टडी करा, और जो कि 2013 के दौरान जो है, जो कि पब्लिश हुए थे, उन सब पेपर्स को स्टडी करके जो है इन्होंने आगे कंक्लूजन निकाला। आगे देखते हैं, देखो विद इन ईच पेपर, हर एक पेपर में जो है जितने भी 100 से ज़्यादा जो पेपर रॉसमैन और इनके साथियों ने स्टडी करा, उन सब पेपर में दे आस्क्ड what threat scientists had studied 366 perceived threats। एक मिनट, अब ये मैं देख लेता हूँ कि 366 ये राइट है या फिर इसके बदले जो है कुछ और है, ठीक है। तो एक, हाँ 46 का यहाँ पर है, यहाँ पर रॉसमैन, हाँ 366 करेक्ट है, परसीव थ्रेट्स इन ऑल, अच्छा ये बराबर है। देखो तो विद इन ईच पेपर, हर एक पेपर में जो है इन्होंने क्या पूछा, इनके साथियों ने, रॉसमैन ने पूछा कि ये जो व्हाट थ्रेट्स साइंटिस्ट हैड स्टडीड, तो साइंटिस्ट ने जितनी थ्रेट्स मतलब जो एक तरह से चुनौतियां, है ना, या खतरा जो है इन्होंने स्टडी करा, और टोटल कितने थे, 366 थे। परसीव थ्रेट मतलब इतने थ्रेट जो है 366 थ्रेट्स थे इन ऑल, एंड व्हाट दे हैड एक्चुअली फाउंड, मतलब इन लोगों ने ये सारी इस चीज पे खोज किया कि इन्होंने इतनी थ्रेट किया, इससे इनको क्या प्राप्त हुआ, वो सारा इंफॉर्मेशन इन्होंने उसका डेटा स्टडी करा, एनालाइज करा बेसिकली। अब देखो क्या बोला, इन 83% ऑफ केसेस, मतलब जितने इन्होंने पेपर स्टडी करे उसमें 83%, 83% जो केसेस हैं, देखो उसमें दे परसीव द डेंजर ऑफ ओशन ट्रैश वर प्रूवन ट्रू, मतलब इन्होंने ये पाया, है ना, परसीव मतलब इन्होंने ये पाया या ये सत्य पाया कि जो ओशन ट्रैश का मतलब वही कचरा, ठीक है, क्या होगा ये कचरा, ओशन का जो कचरा है, ओशन का जो कूड़ा है, वर प्रूवन ट्रू, मतलब ये जो इस ओशन के ट्रैश के कारण जो खतरा है ना, जो वाकई में जो चुनौती है एक तरह से वो सच पाई गई। कितने केसेस में, 83% में पाया गया कि हाँ इन्होंने जिस तरीके से पेपर लिखा उसमें सच्चाई है। इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग केसेस, जो बाकी के जो कितने 17% में से ज़्यादातर जो केसेस हैं, 17% जो बचा हुआ उसमें से जो ज़्यादातर केसेस हैं, अब इसमें क्या हुआ कि द वर्किंग ग्रुप फाउंड द स्टडीज टू शॉडी, इन मतलब कुछ परसेंटेज जो स्टडी हुई ना वो बहुत ज़्यादा शॉडी थी, शॉडी मतलब एकदम अंदाजन, रफ एकदम, है ना, एकदम एक्यूरेट नहीं, इनएक्यूरेट जिसको बोल सकते हो, है ना, शॉडी का मतलब होता है इनएक्यूरेट, है ना, इनएक्यूरेट पाई बिल्कुल। टू ड्रॉ कंक्लूजन मतलब उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है इस तरह से। फ्रॉम दे लैक्ड अ कंट्रोल ग्रुप, ना तो उसमें कोई प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, और यूज्ड फॉल्टी स्टैटिस्टिक्स, और आप क्या बोल सकते हो कि उसमें जो इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स, जो रिकॉर्ड्स वगैरह जो डेटा बताया वो सब गलत बताया, है ना, किसमें, 13% में से, 13 के ज़्यादातर केसेस में, ऐसा नहीं कि पूरे 13% में,
13 के ज़्यादातर केसेस में जो है उन्होंने देखा कि उनका जो डेटा वगैरह जो स्टैटिस्टिक्स था वो सबका सब रॉन्ग था, है ना। स्ट्राइकिंगली मतलब और ज़्यादा शॉकिंगली क्या रॉशमैन ने और क्या कहा, ओनली वन वेल डिजाइन स्टडी फेल्ड टू फाइंड द इफेक्ट इट वॉज लुकिंग फॉर, है ना। ओनली वन वेल डिजाइन स्टडी फेल्ड, ओनली वन वेल डिजाइन स्टडी फेल्ड टू फाइंड द इफेक्ट इट वॉज लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। देखो इसमें एक इन्होंने वेल डिजाइन स्टडी में भी जो इफेक्ट मतलब एक वेल डिजाइन इफेक्ट स्टडी इन्होंने जब देखा तो उसमें ये जो स्टडी हुई इस पर्टिकुलर केस में उसका क्या इफेक्ट निकला, उसका क्या परिणाम निकला वो उनको नहीं दिख पाया, है ना। कैसे, किसकी बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन बात कर रहे हैं किसमें, म्यूजल में। म्यूजल इंजेस्टिंग माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक बेड। म्यूजल जो समुद्री जो एक जीव होता है, ठीक है, एक प्राणी होता है समुद्री जानवर जो होता है म्यूजल, उसमें इंजेस्टिंग उसने क्या कर लिया था, माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जो है वो उसने खा लिए थे, है ना, उसकी बॉडी में पाए गए। अब द प्लास्टिक मूव्ड फ्रॉम म्यूजल से जो है, म्यूजल के पेट से जो है, मतलब म्यूजल के पेट में था वो, वहां से जो है वो प्लास्टिक कहाँ गया, उनके ब्लड में गया, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या चीज पता करी, फाउंड एंड स्टेड देयर फॉर वीक्स, वहां पे फाउंड, है ना, वो मतलब कई हफ्तों तक साइंटिस्ट वहां पर रुके और उन्होंने कुछ उस पर रिसर्च करना कंटिन्यू रखा, म्यूजल के अंदर जो प्लास्टिक गया उस पर कि क्या हुआ इस प्लास्टिक का, अब कहाँ कौन से एनिमल में जाने वाला है। बट डिडंट सीम टू स्ट्रेस आउट द शेलफिश, मतलब इन्होंने जो है किस पर रिसर्च किया, मतलब एक ही मान लो म्यूल पे अगर इन्होंने म्यूजल पे अगर इन्होंने रिसर्च किया तो वहां पे कई दिनों तक रुके, लेकिन उस दौरान जो है उन्होंने और भी कोई काम नहीं किया, उन्होंने बस म्यूजल पे फोकस किया और इन्होंने जो है किसका ध्यान नहीं रखा, शेलफिश का ध्यान नहीं रखा। जबकि प्लास्टिक अगर वहां पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है क्या चांसेस हैं कि बहुत सारे एनिमल के बॉडी में वो जा सकता है, बहुत सारे उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसका यही मानना है कि उन्होंने क्या किया, एक के ऊपर ही रिसर्च की और उसमें वो इतना मशगूल रहे कि दूसरे एनिमल पर उन्होंने कोई भी उसमें वो नहीं किया, रिसर्च कंटिन्यू नहीं रखा, तो सेलफिश पे नहीं किया। तो मतलब इस तरीके से साइंटिस्ट की लापरवाही जो है वो इसमें दर्शाई गई कि किस तरीके से उन्होंने अपना टाइम भी वेस्ट किया, उन्होंने वेट किया कि कैसे म्यूजल में आगे बढ़ने वाला, लेकिन उन्होंने दूसरे एनिमल में नहीं किया। क्यों, अच्छा ये सेलफिश क्यों बोला है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे देखो, ये हो सकता है कि सेलफिश जो है वो म्यूजल को खाती हो। अब शेलफिश अगर म्यूजल को खाएगी तो जाहिर की बात है म्यूजल के स्टमक में जो होगा, म्यूजल के पेट में अगर होगा क्या, प्लास्टिक होगा, तो वो सेलफिश अगर उसको खाएगी तो वो उसके अंदर चले जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने म्यूजल पे ही फोकस किया, उसने देखा कि कैसे उसके पेट में से कैसे ब्लड में जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये फोकस नहीं किया कि कैसे एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जा रहा है। उसको खाने वाला जो प्रेडेटर है, जिसको ये जो म्यूजल जिसका शिकार होती है ना, उसके अंदर भी जाएगा, जाहिर सी बात है, तो उसमें जा रहा है कि नहीं, तो वो इन्होंने स्टडी नहीं किया। मतलब इनकी जो स्टडी है वो बहुत लिमिटेड रही, है ना, बहुत ही अधूरी या लिमिटेड रही इस तरह से। अब देखो, लॉट ऑफ ओशनिक डेब्रिस इज माइक्रोप्लास्टिक, ज्यादातर जो ओशन का जो कचरा है वो माइक्रोप्लास्टिक होता है, मतलब पानी में घुल जाता है, बहुत ही छोटे छोटे कण दिखते हैं, इतना छोटा होता है, तो वो बारीक होता है, और स्मॉल पीसेस होते हैं, 5 मिलीमीटर से भी छोटे छोटे होते हैं। अब दीज में भी ये क्या क्या हो सकता है, देखो ओशनिक डेब्रिस जो कचरा है प्लास्टिक का वो क्या हो सकता है, आप देखो वो हो सकता है फेशियल स्क्रब, जो फेसेस चेहरे पे हम स्क्रब लगाते हैं उसमें भी छोटे छोटे प्लास्टिक के बीड्स होते हैं, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे रेत के से भी बारीक दाने जैसे, वो भी हो सकता है। एक फाइबर शेड्स फ्रॉम सिंथेटिक क्लोथ, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं सिंथेटिक, उसमें से जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर है ना क्लोथिंग जो वॉश करने के बाद जो निकलते हैं वो, और इरोडेड रेमिनेंट्स ऑफ लार्जर डेब्रिस, जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक के सामान हैं, चीज़ें हैं, उसमें से निकले छोटे छोटे उसका कचरा, है ना, प्लास्टिक का जो कचरा है वो हो सकता है। तो वो सारा है। कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टडीज इन्वेस्टिगेटिंग लार्ज स्केल डेब्रिस, मतलब बहुत सारी स्टडी में इन्होंने देखा रोशमैन ने कि वो स्टडी करते हैं, लेकिन किसकी, लार्ज स्केल डेब्रिस की, बड़े बड़े डेब्रिस, बड़े बड़े कचरे की करते हैं, प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों की स्टडी करते हैं, है ना, लेकिन छोटे छोटे बारीक जो माइक्रोस्कोपिक जो आंखों से दिखाई ना दे उनकी स्टडी नहीं होती है। तो रोशमैन ग्रुप जो है ना, इनके अपोजिट जो है रोशमैन ग्रुप ने क्या करा, फाउंड लिटिल रिसर्च ऑन दी इफेक्ट ऑफ दिस, मतलब रोशमैन ने जो है इस चीज पे ज्यादा रिसर्च किया, छोटे छोटे डेब्रिस का क्या असर पड़ता है इन जानवरों पर,
और उन जानवरों की वजह से दूसरे जिनके ऊपर जो ये निर्भर होते हैं जो एक दूसरे के, उनके ऊपर भी क्या असर पड़ता है, वो भी रॉसमैन ने और इसके ग्रुप ने स्टडी करा। देर आर ऑल्सो शी एड, और इन्होंने क्या बताया, अ लॉट ऑफ ओपन क्वेश्चंस अबाउट द ways that oceans debris can lead to sea creatures death, और उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि किस तरह से ये जो ओशन का जो कचरा है वो सी क्रिएचर्स की मौत का कारण बनता है। इसका भी कोई साफ सुथरा एकदम साफ जो पिछले जो पेपर आए उसमें इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो रोशमैन ने जो है यही एक प्रश्न उठाया इन क्वेश्चन पेपर के जो दूसरे जो रिसर्च पेपर थे उनके ऊपर। आगे देखते हैं। Many studies have looked at how plastic affects an individual animal, कि ज़्यादातर जो स्टडी हुई पुरानी उसमें क्या फोकस रखा इन लोगों ने कि प्लास्टिक जो है वो एक किसी एनिमल को कैसे असर करता है। जैसे म्यूजियल के केस में उन्होंने उसी पे स्टडी कंटिन्यू रखी कि उसको कैसे असर पड़ता है ना, लेकिन और दैट एनिमल्स टिश्यू और सेल, मतलब उसके सेल में कैसे असर हो रहा है, उस टिश्यू में कैसे असर हो रहा है, रेदर देन होल पॉपुलेशन, उसकी पूरी जनसंख्या पे उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। उन्होंने केवल एक इंडिविजुअल पे फोकस किया और उसी पे जो है पूरा उन्होंने कंक्लूजन कर दिया कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ये खतरा है ना, और बड़े लार्ज स्केल पे उन्होंने रिसर्च नहीं किया। और लैब में देखो, लेबोरेटरी में क्या करते थे, साइंटिस्ट ऑफन यूज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक। कई बार साइंटिस्ट क्या करते हैं लैब में, क्या करते हैं साइंटिस्ट, ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक को लेके वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन व्हाट्स रियली, ओशन के अंदर इतना नहीं होता है, ओशन के अंदर लाइट कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन बाहर जो है लैब में जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन का प्लास्टिक होता है, उससे वो रिसर्च करते हैं, तो उसका परिणाम कुछ और होता है। बट रियल में जो ओशन के अंदर जो डेब्रिस होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, तो परिणाम भी अलग होगा, है ना। तो परिणाम भी जो कई बार आता है, कंक्लूजन वो भी अलग होता है। नन ऑफ दैट टेल्स अस हाउ मेनी बर्ड्स और फिश और सी टर्टल कुड डाई फ्रॉम, मतलब ये जो भी रिसर्च निकल कर आई पेपर वगैरह साइंटिस्ट के द्वारा, ये हमको कोई भी रिसर्च का पेपर एक्यूरेटली ये नहीं बता सकता कि कितनी फिश या कितना सी टर्टल या वो सब मरे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण, ठीक है। किस ईयर में कितने कितने मरे हैं वो नहीं बता पाता है ना, केवल एक अंदाजा बता पाते हैं। और हाउ डेथ्स ऑफ वंस, ये भी नहीं पता चल पाता इन रिसर्च से, ये रिसर्च पेपर वगैरह से, कि हाउ डेथ ऑफ वन स्पीशीज कुड अफेक्ट दैट ऑफ एनिमल्स प्रेडेटर, मतलब एक स्पीशी की अगर मौत होती है तो उससे दूसरा जो एनिमल प्रेडेटर है, मतलब ऐसा जानवर जो उस मरने वाले स्पीशी को के ऊपर डिपेंड है, खाता है, उस पर कैसे असर होगा, है ना। एनिमल्स का जो प्रेडेटर है उस पर कैसा असर होगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन डेटा बता नहीं पाते। और द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, और ये भी नहीं पता चल पाता इन रिसर्च से कि किस तरीके से इस प्लास्टिक, इस समुद्र की जो पॉल्यूशन है उससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर कैसे असर पड़ने वाला है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं रोशमैन जो है ये प्रश्न चिन्ह उठा रही है इनके ऊपर, पुराने जो रिसर्च पेपर है और उनका जो तरीका है रिसर्च करने का, उस तरीके पे भी इनको थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह इन्होंने उठाया है ना, अधूरा इनको बताया है। अब इन्होंने सजेशन दिया है ना, अपनी तरफ से कुछ बात रखी है कि वी नीड टू बी आस्किंग मोर इकोलॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन, कि हमें और इकोलॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, हमें और गहराई से रिसर्च करनी पड़ेगी। रोशमैन सेज यूजुअली साइंटिस्ट डोंट नो हाउ डिजास्टर, अब देखो आगे की बात कि यूजुअली क्या होता है साइंटिस्ट को ये तो पता नहीं होता है कि डिजास्टर्स लाइक जैसे ऑयल स्पिल जैसा डिजास्टर है या न्यूक्लियर मेल्ट डाउन है, ये सब के सब नेचुरल डिजास्टर है ना, विल अफेक्ट द इन्वायरमेंट। उनको ये नहीं पता चलता कि ये इन्वायरमेंट पर क्या असर डालेगा, कब तक, जब तक कि दे हैव हैपेंड, मतलब वो ये बता रहे हैं कि ये जो ऑयल स्पिल वगैरह है या दूसरे कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर है उसमें क्या होता है कि हमको पहले से इंफॉर्मेशन उसकी पता नहीं हो पाती कि क्या असर करेगा। हाँ, एक बार वो हो गया, मान लो एक बार वो हादसा हो गया है ना, नेचुरल कोई कैलामिटी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, इस तरह का हादसा हो गया, उसके बाद जो नुकसान होता है उसका आकलन हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि कितने लोग मर गए, कितना नुकसान हुआ, है ना। लेकिन है ना, उसके पहले तो पता नहीं चलता है। लेकिन इसमें क्या, ये देखो हैपेंड सी सेज वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चंस अर्ली इनफ, है ना, क्या, अरे हाँ ये तो हो गया। अब देखो उन्होंने और क्या कहा कि हम जो है सही प्रश्न नहीं पूछते पहले ही अर्ली इनफ, बट
आगे क्या, इफ इकोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड, अगर इकोलॉजिस्ट इस बात को समझ पाए कि कैसे एक स्लो मूविंग डिजास्टर है ओशन का, ऑफ ओशन गार्बेज इज अफेक्टिंग द इकोसिस्टम, दे माइट बी एबल टू प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग वर्स। मतलब लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि अगर ये जो इकोलॉजिस्ट है ये इसको समझ पाए, इसकी जो समस्या है, ये जो ओशन पोल्यूशन की या स्लो मूविंग ओशन गार्बेज की जो समस्या है, अगर असलियत में इकोलॉजिस्ट लोग या साइंटिस्ट लोग इसको समझ पाए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी गहरी है, इसके जो दूरगामी जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो कितने खतरनाक है, अगर वो समझ पाए तो उससे क्या होगा कि चीज़ें जो है बहुत भयानक होने से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसका मतलब उनका यही कहना है कि हमको जो है और गहराई से इस ओशन में आने वाले जो डेब्रिज हैं, कचरा है, इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, इसकी भयानकता, भयावह कितना है ये उसको समझना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो है उस हिसाब से और अच्छे से हमको जो है जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको अलार्म वॉर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उस तरीके से इन्होंने एक पेपर लिखा और दूसरी रिसर्च के ऊपर अपना एक क्रिटिक्स किया, उसने उस पे फीडबैक दिया एक तरह से अपना। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों जिस तरीके से हमने इसको पढ़ा, पूरे पैसेज को समझा कि रोशमैन का एक आउटलुक है ना, उनकी अपनी एक रिसर्च है दूसरे रिसर्चेस के ऊपर कि ये समुद्री डेब्रिस, कचरा जो आता है प्लास्टिक का खास करके, उससे कैसे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है और क्या कमियां रह गई पुरानी रिसर्चेस में, क्या सही पिक्चर जो है वो सामने उभर कर नहीं आ पाती, वो पूरा उन्होंने जो है अपने पेपर के थ्रू जो है उनकी टीम ने हाईलाइट किया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्लियर हुआ, उम्मीद है आप लोगों ने समझा। और अब हम लोग चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधा। क्वेश्चन आपके सामने है 40 वाला दोस्तों। इसमें जो है सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। चलिए, तो ये जो स्टेटमेंट है इससे आगे ही है ये। ठीक है, इसके आगे अपने को कंप्लीट करना है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डिजास्टर्स एंड इकोलॉजिकल डिजास्टर्स स्पेशली विथ रेफरेंस टू मरीन डेब्रिस इज दैट। ठीक है, क्वेश्चन समझो कि पैसेज के हिसाब से जो एक फर्क, डिफरेंस किस किस के बीच में, एक तो जो नेचुरल डिजास्टर होता है वो, और जो इकोलॉजिकल डिजास्टर होता है, दोनों में क्या फर्क है ना। जब हम इन मरीन का जो कचरा है, डेब्रिस है, उसके हिसाब से बात करें तो दोनों में क्या फर्क है पैसेज के हिसाब से, तो देखते हैं क्या फर्क है। इकोलॉजिकल डिजास्टर जो होते हैं आर नॉट नेचुरल, वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, और वो क्या होते हैं, मैन मेड है। तो ये इसके हिसाब से, पैसेज के हिसाब से नहीं, ये तो बहुत वो है, मतलब समझ में आने वाली चीज़ है, कॉमन है। और देखते हैं द लेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेटर का मतलब बाद वाला है ना। लेटर का मतलब क्या मतलब है, बाद वाला। बाद वाला मतलब कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, ये इसकी इकोलॉजिकल की। ये इकोलॉजिकल जो डिजास्टर है आर नॉट, ये द लेटर कैन बी प्रेडिक्टेड। ध्यान देना, ये जो इकोलॉजिकल डिजास्टर है ये क्या होता है, ये प्रेडिक्टेड होता है, मतलब हम इसके बारे में पूर्व में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं, एंड प्रिवेंटेड, और उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसको बचाने के उपाय भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओशन डेब्रिस डज नॉट कॉज नेचुरल डिजास्टर। अच्छा, ओशन के जो डेब्रिस हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स नहीं करते, बट कुड बिकम मोर डेंजर, और डेंजरस हो सकते हैं। चलिए ये भी हो सकता है, आगे देखते हैं। वी स्टडी द फॉर्मर मतलब ये वाला, कौन सा, इसको बोलते हैं फॉर्मर, पहले वाला। वी स्टडी द फॉर्मर नेचुरल डिजास्टर आफ्टर दे हैपन, जब वो होते हैं फिर हम स्टडी करते हैं, एंड लेटर बिफोर दे हैपन। चलिए ये भी सही है। देखो दोस्तों, अगर हम इसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं ना तो हमको लगेगा, पूरे पैसेज को अगर पढ़ के नहीं समझेंगे ना तो हमको लगेंगे चारों सही है और कोई सा भी हम टिक कर देंगे। तो यहाँ ना बहुत बहुत बढ़िया और बहुत सोच समझ के आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं दोस्तों। आपकी जो थिंकिंग, आपकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग जो एबिलिटी है उसको चुनौती यहाँ पे दी गई है। उसमें ये बताया गया है कि भाई पैसेज के हिसाब से आप क्या समझ रहे हो। आप पैसेज में ये ढूंढने बैठोगे ना, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है ही नहीं, पैसेज के अंदर इसका आंसर नहीं है। ये एक समझ है कि आपने, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया। ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि क्या आपका आंसर आप देने वाले हो।
देखो सीधा सीधा ये बोला गया है कि दो तरह के डिजास्टर होते हैं। एक होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर वो होता है जिसपे इंसान का काबू नहीं होता है ना, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर ऑयल स्पिल हो गया समुद्र में से, मान लो कोई समुद्र पलट गया, सॉरी एक शिप पलट गई तो पलटने से तेल सारा धुल गया, गिर गया, या एक अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो वो उस पर इंसान का क्या काबू, तो उसके बाद तो नुकसान होना ही होना है ना। बाढ़ आ गई तो उसके बाद तो लोगों की मौत होना है, गुजरना है, उस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। तो उसमें क्या होता है कि कितना नुकसान हुआ उसका आकलन पता चल जाता है बाद में, है ना। लेकिन ये जो इकोलॉजिकल जो डिजास्टर है, जैसे पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन तो जो है हमको पहले से ही हम इसका आकलन कर सकते हैं, होने के पहले ही। भाई हमको पता है कि प्लास्टिक जब जाएगा समुद्र में तो एनिमल्स उसको खाएगा और खाने के बाद वो लौट के हमारे पास में ही आएगा। जब फिशेस को जो लोग कंज्यूम करते हैं वो सीधा अपने बॉडी में आएगा और अपने को नुकसान करेगा। तो ये हमको पता है कि हम जितना ज्यादा, और करते हैं जानबूझ के, जितना ज्यादा हम समुद्र में प्लास्टिक के कचरा फेंकेंगे या उतना ज्यादा जो है वो नुकसान होने वाला है। तो दोनों में क्या फर्क है, और यही बताया जा रहा है। आप देखो एक जगह इस चीज की वर्णन जरूर किया गया है ना, इस चीज के बारे में बताया, हालांकि राइट बिल्कुल डिटेल में नहीं बताया, बट बताया। देखो क्या बताया है, इकोसिस्टम आस्किंग क्वेश्चंस, है ना, ये रहा। देखो रॉसमैन ने कहा यूजुअली क्या होता है, साइंटिस्ट जो है उनको नहीं पता होता है, देखो कि हाउ ये जो डिजास्टर है जैसे ऑयल स्पिल है या मेल्ट डाउन है, ये कैसे इन्वायरमेंट पे असर डालेंगे, जब तक कि वो क्या ना करें, वो हो ना जाए, है ना। तो इसी से रिलेटेड है ये कि द लेटर कैन बी, ये देखो बाद वाला कौन सा, बाद वाला कौन सा, इकोलॉजिकल डिजास्टर, ये हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसको हम बचा सकते हैं। इकोलॉजिकल डिजास्टर जो है, ये जो पोल्यूशन का है या जो प्लास्टिक ऐड करना है, ये अपन प्रेडिक्ट पता भी कर सकते हैं पहले से, उनके होने से पहले पता कर सकते हैं और उसको बचा भी सकते हैं, मतलब हमारे हाथ में है उस खतरे से। इकोलॉजिकल जो डिजास्टर का जो खतरा है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। भाई जाहिर सी बात है, हमको पता है कि बाढ़ से बचना है तो पेड़ कम से कम काटना है ना, तो हम उससे बचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हमको ग्रीनरी करना है, तो वो हमारे हाथ में है, इकोलॉजिकल जो डिजास्टर उससे बचने का। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है। इसमें सेंट्रल आइडिया ही यही है कि हम इससे तो जो है ये तो हमारे कंट्रोल में, बट ये नेचुरल तो चलो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है पता, ये इसकी पूरा एक तरह से पूरी इसकी समरी, किस तरीके से हमने समझा ना उसके ऊपर है ये। तो राइट आपका जो आंसर है ना ये हो जाएगा। बाकी तो सब कॉमन सेंस की बातें है। देखो ये पूरा कॉमन सेंस की बातें हैं कि इकोलॉजिकल है, इसके बारे में पैसेज में कहीं भी नहीं लिखा है ना। ये देखो ओशन डेब्रिस जो है वो डिजास्टर नेचुरल नहीं करती, ये तो कॉमन सेंस है भाई, ये पैसेज में कहाँ लिखा है। और हम जो है फॉर्मल को होने के बाद पढ़ते हैं, इसको पहले ये भी इसमें नहीं लिखा है और इसका तो सेंस आ रहा है, तो बी वाला हमारा राइट है ना। नेक्स्ट आप देखो इसमें क्या दिया है, सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम डेवलप इन द पैसेज। भाई इसका सेंट्रल निचोड़, सेंट्रल आइडिया हमको बताना है, इसका सेंट्रल थीम क्या है वो हमको बताना है ना। रिसर्च हैज टू ओनली इंक्लूड स्टडीज ऑन दी, हाँ क्या बताया जा रहा है कि रिसर्च जो है उनको केवल वो स्टडी करना चाहिए जो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोप्लास्टिक पर है। ये बताया जा रहा है क्या कि रिसर्च जो है वो केवल माइक्रोप्लास्टिक पर होना चाहिए, बड़े प्लास्टिक के जो टुकड़े उस पर नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं दिया है। फ्यूचर इकोलॉजिकल रिसर्च ऑन मरीन जो डेब्रिस है मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर एंड प्रिवेंट इट। जो भविष्य की जो रिसर्च होने वाली है ना मरीन कचरे पर या इस पर, इनको समझना चाहिए इस इकोलॉजिकल डिजास्टर का नेचर और उसको बचाना चाहिए। भाई उसका नेचर समझना चाहिए और उसको बचाना चाहिए, ये हो सकता है। हाल ही की जो रिसर्च है किस पर, मरीन डेब्रिस के ऊपर, इज नॉट डिफेक्टिव, वो खराब नहीं है, वो अच्छी है ना। खराब है ना, यही तो बता रहा है, पेपर में कमियां बता रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पेपर पब्लिश्ड अप टू 2013 एम्प्लॉय प्रॉपर रिसर्च। प्रॉपर होता तो फिर रॉसमैन को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, उसमें कमियां है ना। तो ये हमारा सही है कि आने वाले आगे के टाइम में जो इकोलॉजिकल रिसर्च होगी ना मरीन डेब्रिस पे, उनको ये चीज समझना चाहिए कि ये जो इकोलॉजिकल डिजास्टर है उसका सही नेचर क्या है और उस हिसाब से जो है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल सेंट्रल आइडिया बी में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ऑथर के हिसाब से ये जो ऑथर के हिसाब से प्रॉब्लम क्या है,
पेपर रिपोर्टिंग सी बर्ड ईटिंग प्लास्टिक। इनके साथ दिक्कत क्या है, ये जो पेपर रिसर्च पेपर वगैरह आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि सी बर्ड जो है वो क्या करता है, प्लास्टिक। यही प्रॉब्लम है ना कि वो एक दो सी बर्ड ने ऐसा प्लास्टिक निकल जाता है तो बोलते हैं कि पूरी की पूरी सी बर्ड की प्रजाति खतरे में है ना। ये जो साइंटिस्ट है डू नॉट आस्क इकोलॉजिकल रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछते, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। साइंटिस्ट यूज कॉन्सेंट्रेटेड प्लास्टिक जनरेट डेटा, ये भी इसका बर्ड से क्या लेना देना। वी एग्री विद द पर्सपेक्शंस ऑफ द साइंटिस्ट बट नॉट देयर मेथड, हम अब हमारा एग्री होना नहीं होना बर्ड से क्या लेना देना। जनरलाइजेशन अबाउट द होल पॉपुलेशन गेटिंग अफेक्टेड लैक वेरिएबल डेटा, ये है ना, उसमें दिया है। ये क्या करते हैं कि एक बर्ड को हो गया तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज कर देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं पूरी की पूरी बर्ड की पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है और एक वेरीफिएबल डेटा उसमें नहीं होता, उनके पास प्रूफ भी नहीं होता, ऐसे ही वो लगा देते हैं बस एक दो बर्ड में हो जाता है। तो ये उनका गड़बड़ रॉशमैन ने पकड़ा, तो डी वाला जो है बिल्कुल सही है।